I'll share my screen. Yeah, my display is visible to everyone. Okay. So this is our LMT sessions. LMT sessions. Sorry. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So these are LMT session means last minute treasure. Last minute treasure. यानी कि इसमें जो जो हम करेंगे that must be on your fingertips. That must be on your fingertips. तो जो जो भी highlighting topics है, I have recollected them in a single PDF. I have recollected them in a single PDF like this way. ठीक है, तो मैंने उसको combine किया है so that we can read most of the things effectively. तो जो जो भी important चीजें थोड़ा सा उन particular topics पे, because you know it's not just about PYQs, it's about PYDs. ठीक है, उसमें से क्या possible questions आ सकता है, that we will try to cover, that we will try to cover. It doesn't matter अगर हमारा एक और सेशन लगता है, दो सेशन और लगते हैं, it doesn't matter. But what matters is our completion and our satisfaction with these topics. ठीक है, तो PSM में अगर आप लोग इतना कर लोगे, देखो फर्स्ट प्राइस शुड बी ऑलवेज कि नहीं मुझे पूरा PSM पढ़ना है. ठीक है, मैंने पढ़ा, इन केस में नहीं पढ़ पाया, नाउ व्हाट शुड आई डू एट दिस पॉइंट, या मैंने पहले पढ़ा था मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया, तो इस बार मैं किस टॉपिक्स के रिवाइज करूं. जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, दिस यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट ये रिवाइज करना है. अगर आप समर्पित बैच में नहीं थे, आपने पूरी क्लासेस नहीं करी है ना, व्हाट शुड आई डू, या फिर जब मैंने आपको फ्री एक्सेस दिया आप लोगों ने नहीं किया, दैट इज ओके. अब जो होना था दैट्स ऑलरेडी बीन लाइक time has passed. Now what could be done at this time, this could be done best at this time. ठीक है, एटलीस्ट इसको आप अच्छे से कर लेना, तो आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू PSM will be covered. ठीक है, so this is how we will start. Now let's start with the class. Everyone ready? Please write in the chat section, is everyone ready? So that, and please who don't know about these classes, please आपको एक scribble copy अपने साथ में रखना है. I'll allow you like some little break, like 1 minute 2 minute break to revise. I'll allow each and everyone to revise those section. ऐसा नहीं बस चल रहे नहीं, थोड़ा सा एक minute break दूंगा आप लोगों को ताकि आप रिवाइज कर सको. ठीक है, and you can also write those particular things in the class only. Whether you have made the notes, whether you don't have notes, it doesn't matter. अभी लिखोगे एक्टिव रिकॉल रहेगा. इट्स या आई विल बी इन इंग्लिश आल्सो, डोंट वरी. You have to be very active while in the class, while writing. When you will write on your piece of paper, on your like rough copy, so it will act like a active recall. ठीक है, so this is what you have to remember. ठीक है, so I hope most of you are so comfortable. So far so good. Let's start with this. So first of all we will learn this age group. देखो first question usually they put on this age group. So what do you mean for this age group, यानी कि चाइल्ड का एज क्या होगा, 0 to 18 ईयर, 0 to 18 ईयर्स. एडोलसेंस 10 to 19 ईयर, 10 to 19 ईयर. देखो ऐसे आप देखोगे तो चीजें आपको इजी लगेगी, बट व्हेन यू विल बी इन प्रेशर ऑफ द एग्जाम, व्हेन अब एक्चुअली में एक स्ट्रेनियस सिचुएशन में होगी जब आपके सामने इतने सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी, यू विल बी कंफ्यूज. सो वी हैव टू बी वेरी कंपोज्ड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर इजी क्वेश्चन, 1 to 5 second question, 1 to 5 second question, but we have to be very active. So when it will be in your reflexes to answer such questions, when you will do multiple questions, तो भी वो आपके practice will be in your reflex after that. ठीक है, so now let's focus on the topics related to child. Please remember 0 to 18 years, 0 to 18 years. Adolescents 10 to 19 years. Geriatric age group will be more than or equal to 60 years. Perinatal, it's around natal period, so it is from 28 weeks to 7 days after delivery, 7 days after delivery. About period of viability, see, period of viability you have to remember that is 28 weeks. What do you mean by this period of viability? यानी कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उस बच्चे का हो सकता है if he or she has taken birth.
after 28 weeks. So this is the meaning of period of viability. ठीक है, तो period of gestation more than 28 week, or this birth weight more than 1000 gram, or we can say 1 kg, or birth length more than 35 centimeter. So these are criteria for period of viability. ये तीनों criteria आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें से हमसे पूछ लिया कि what is the most important factor, तो मुझे याद रखना है this will be my birth weight. Birth weight that is more than 1000 gram is most important factor. Now also और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें से, they will ask you like if the, let's say if the fetus is dead, if the fetus is dead of more than 28 weeks, or the weight is more than 1000 gram, or birth length जो है उसका more than 35 centimeter, so that dead fetus will be called as stillbirth. Stillbirth. And if the fetus is dead below 28 weeks, less than 1000 gram, or less than 35 centimeter birth length, then it will be termed as abortion. So this is the importance of this period of viability. This is what you have to remember. And obviously related to this reproductive age group, please remember it's 15 to 49 years. 15 to 49 years. ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज में आप ये देखोगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डिस्कस अबाउट कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी, so related to cohort study what we have to follow, देखो first of all you have to know the meaning of कि cohort मतलब क्या होता है। cohort मतलब it's a group of individuals which actually shares the similar characteristics। over here minimum two groups required, minimum two groups required। अभी just मैंने क्या सीखा, cohort मतलब groups, so I can also say this same statement with this, minimum two cohort are required, two cohort are required, ठीक है। so this already been asked, so please remember related to this कि कितने मिनिमम ग्रुप्स चाहिए, कितने मिनिमम ग्रुप्स चाहिए, हाउ मच मिनिमम ग्रुप्स यू नीड फॉर दिस कोहार्ट स्टडी, मिनिमम टू ग्रुप्स, दिस ऑलरेडी बीन आस्क्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज वेरी क्विक कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। देखो कोहार्ट स्टडी का मतलब I am today standing over here and talking about future, ठीक है। इन सिंपलर वे वी विल ट्राई टू रिमेम्बर, क्योंकि अगर आप इसको जितना सिंपल याद रखोगे उतना आपका क्वेश्चन इजी बनेगा। इफ यू विल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट दिस थिंग्स, योर क्वेश्चन विल आल्सो बिकम, इट विल बी कंफ्यूजिंग। सो इट्स बेटर कि जितना जो इंफॉर्मेशन उसको कम याद रखेंगे लेकिन अच्छी याद रखेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिफाइन वे में। सो दिस इज योर, लेट्स से कि वी हैव टेकन एंड 100 individuals in which can we watch after live class. Yeah, you can watch even after live class also. If you want to revise these things, you can watch after live class also. I'll upload on YouTube, as a LMT session, as an LMT session. Okay, Sutar? Satur, sorry, it's Satur. Okay, I'm sorry. Yeah, now let's discuss about, I am taking 10 individuals in one group and 10 individuals in another group. So 10 individuals like 100 smokers, ठीक है। आज 2024 है, 100 smokers I am taking and 100 नॉन स्मोकर्स आई एम टेकिंग। सो मिनिमम कितने ग्रुप चाहिए थे कोहार्ट में, टू ग्रुप्स, ठीक है, ले लिए मैंने टू ग्रुप्स। नाउ ऑन दिस एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, किसको एक्सपोज्ड है, रिस्क फैक्टर को। कौन सा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर एंड दिस इज नॉन स्मोकर, सो दीज आर एक्चुअली नॉट एक्सपोज्ड टू रिस्क फैक्टर। तो ये हमको याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोज्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एक्सपोज्ड। दीज आर एक्सपोज्ड टू, these are exposed to risk factor, non exposed to risk factor, ठीक है। now we are looking forward after 15 years what will happen related to lung cancer, related to lung cancer। let's say 100 individuals है, 100 smokers है। आगे हम स्टडी को देखेंगे फॉरवर्ड लुकिंग, 15 साल बाद 80 individuals will be suffering from lung cancer, and over here 100 non-smokers में non exposed group, किसको नॉन एक्सपोज, रिस्क फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज उनमें से लाइक 100 नॉन स्मोकर्स में से ओनली 10 इंडिविजुअल्स विल हैविंग दिस लंग कैंसर। सो दिस इज अ क्राइटेरिया। यहाँ से मुझे ये लंग कैंसर स्मोकर याद नहीं रखना है, यहाँ से मुझे याद क्या रखना है कि अच्छा स्मोकर्स होते हैं, दैट इज एक्सपोज, रिस्क फैक्टर को एक्सपोज किया है और आगे मैं डिजीज की तरफ जा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर में दूंगा पेशेंट को, इंडिविजुअल को। सो व्हाट विल बी that what will be the disease, ठीक है। so this is a concept you have to carry forward। now over here what it actually tells, अगर हमको एसोसिएशन देखना है कि जो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर इससे डिजीज क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, so that will be by strength of association, strength of association। this is what you have to remember। now strength of association is usually given
best by relative risk. Relative risk. This relative risk, that is RR, can also be called as risk ratio. Risk ratio. Now याद क्या रखना है risk ratio relative risk का formula, that is incidence by incidence of exposed divided by incidence in non exposed. देखो exposed over here, if you look over here, this was our 100 smokers, 100 individuals with exposed किसको, risk factor को, and we are going towards the disease. तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, like this RR is equals to 80 got lung cancer out of 100 smokers divided by incidence of non exposed. तो यहाँ पे 10 got lung cancer out of 100 non smokers. So if you will try to calculate, it will become RR is equals to 8. RR becomes 8. Now what do you mean by this 8? ये 8 का मतलब क्या है, याद मुझे क्या रखना है, ये 8 का मतलब ये है कि smokers have 8 times more chances of developing lung cancer. यानी कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो there will be 8 times chances that you will have lung cancer if I compare to non smokers. It doesn't mean कि non smoker को lung cancer नहीं हो सकता है, but if I talk to like if I talk about comparison, तो 8 times ज्यादा chances हो जाता है. So this thing is actually this concept is actually cleared by this relative risk. Now over here in a nutshell, याद क्या रख के जाना है for exam, जहां से question 100% आएगा, if this relative risk is more than one, if it is more than one association present, कि हाँ वो जो risk factor है उसका कुछ, दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट. ठीक है, यानी कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू कॉज दैट डिजीज. RR is equals to 1 means there is no association, there is no association. ठीक है, उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर का इस डिजीज से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट RR. About is voice is breaking to everyone, voice is breaking for everyone or just for Satur? Everything fine so far, so good? Yes, yes. Everything is fine. Okay, dear. So over here, relative risk is less than 1. It means inverse or negative association protective factor. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो particular risk factor है, जो कि what we were assuming that वो एक risk factor है for that a disease, but rather than becoming a risk factor to cause the disease, it becomes a protective factor. अरे यार ये देने की वजह से, तो लेट्स से कि अगर विटामिन सी दे रहे हैं, विटामिन सी तो ये तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है. लेट्स से कि that green tea is actually having a protective factor related to obesity. तो ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो कब, जब RR लेस देन 1 आए. समझ में आया? कोहार्ट स्टडी सबको समझ में आया? आई होप कि कोहार्ट स्टडी थोड़ा क्लियर हुआ होगा और फर्दर क्लियर हुआ होगा, राइट? इफ आई आस्क नाउ, कोहार्ट स्टडी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इट्स एन इंसिडेंट स्टडी, न्यू केसेस आर एडिंग अप, राइट? तो इट्स एन इंसिडेंट स्टडी. ठीक है. कैन इट बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव? ऑब्वियसली इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव, बिकॉज मैं यहाँ पीछे की तरफ नहीं देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. प्रोस्पेक्टिव, नॉट आई एम गोइंग एज रेट्रोस्पेक्टिव, इट्स अ प्रोस्पेक्टिव. ऑल्सो इट इज गोइंग कॉज टू इफेक्ट. कॉज, मैं कॉज दे रहा हूँ, दैट इज रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग ओवर हियर, एंड वी आर गोइंग टू इफेक्ट. इस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज cause to effect study. Also it is called as follow up study. Because why? Because I have to follow up that patient, that individual. So that's why it is also called as follow up study. Also this is termed as risk factor to disease study. So this all different synonyms you have to remember related to cohort study. Now please tell me, cohort study समझ में आया सबको? If it is fine, then question usually comes over this as a visual question. देखो इस टाइप का क्वेश्चन है. फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरोस. मुझे एरोस पे फोकस करना है. यहाँ से स्टडी बिगेन करिए, एंड दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी. सो ओवर हियर दिस इज द beginning of the story. Over here we have started this study, and this is the end of the story, that is end study. I am looking forward. ये arrow इस तरफ जा रहा है. So see, risk factors present over here, exposed, non-exposed. So obviously exposed से non-exposed की तरफ, this exposed से outcome की तरफ जाएंगे, non-exposed से outcome की तरफ जाएंगे. This is cohort study. Visual question can come. Please याद रखना इसको, ठीक है. Now let's talk about this case control. देखो case control में what I have to remember for this case control, please focus. केस कंट्रोल मींस, केस का मतलब क्या और कंट्रोल का मतलब क्या है, ये आपको दिमाग में वेरी क्लियर
this should be very clear in your mind about case and control. See, case means diseased person. Case means diseased person. And control means non-diseased. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. Now over here in the case control study, I am standing today and taking history. I am taking history of that individual. Let's say I went to an hospital. I have took a let's say 1200 patients लिए, or we can say 1200 individuals. उसमें से 10 this 100 individuals will be of lung cancer. Lung cancer. And in 2024, I am asking the history related to smoking. आप smoking करते थे? Yes or no? Yes or no? Let's say over here, आज मैं खड़ा हूं and I am taking the history of past 15 years. Past 15 years. तो let's say 100 lung cancer में if I ask 100 individuals, 70 would be smokers. तो 70 उसमें से smokers थे, 30 smokers नहीं थे, but still they have lung cancer. They have lung cancer. If this 100 healthy individuals, 100 the healthy individuals, or we can say non-diseased, which are also called as control, I am taking history. उनमें से 10 would be with the smokers, 10 would be smokers, लेकिन वो 10 smoker हैं, but they are not having lung cancer. They are healthy individuals, healthy individuals. ये समझ में आया सबको? What does this means? अगर ये सबको समझ में आया, then I'll move forward. Be very quick while responding in the chat section. इतना समझ में आया? Like today I am asking like this 200 individuals for that past divided with these two groups, that is diseased, non-diseased. Diseased, that is cases, and non-diseased, which are control. ठीक है? इतना अगर क्लियर हुआ आपको, प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक. या अगर इतना क्लियर हुआ ना, तो नाउ वी हैव टू रिमेंबर this how this strength of association can be calculated in case control. देखो, strength of association in this case control cannot be calculated by this RR. Why? देखो, RR में हमको इंसिडेंस चाहिए था, RR में हमको इंसिडेंस चाहिए था, यहाँ पे तो इंसिडेंस नहीं है. so that's why this strength of association would not be able to cover with this relative risk. If I went to calculate the strength of association, I will have to do this odds ratio. Odds ratio. AD by BC. AD by BC. अब ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, AD by BC कैसे याद रखना. यू डोंट हैव टू लर्न दिस. आपको एग्जाम में डायरेक्ट टेबल देंगे एंड यू जस्ट हैव टू लर्न कि मुझे AD और BC, AD BC को अरेंज कैसे करना है. नाउ लेट्स कंसीडर दिस द सेम सिनेरियो, और मैं आपको सिखाता हूँ कि ये टेबल कैसे बनती है. व्हेन यू विल लर्न दिस, इट विल बी लाइक अ कपकेक फॉर यू. कैसे? थोड़ा सा फोकस करना. I hope कि you are also writing with me something, at least something. So these are cases, these are controls. These are cases, these are controls. ठीक है? Over here we have this risk factor. ठीक है? Risk factor. Now case present का मतलब क्या है? Diseased one. केस के सामने हम माइनस लिखेंगे. It means non-diseased, healthy individuals. History of risk factor present. Over here present. History of risk factor, sorry, हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर एब्सेंट. ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. अब इसका इस ब्लॉक में क्या आएगा? ऐसा इंडिविजुअल्स जो कि डिजीज्ड है और उसको रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है. मुझे बताओ इस टेबल में से देख के, दिस अबाउ सिनेरियो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? व्हाट विल बी वैल्यू ओवर हियर? हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर आल्सो प्रेजेंट एंड डिजीज इज आल्सो देयर. 70. वेरी गुड शीतल, 70 आ गया. ठीक है? ओवर हियर यहाँ पे क्या आएगा? इट मीन्स उसका हिस्ट्री तो एब्सेंट है. हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर इज एब्सेंट कि नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता था लेकिन मुझे लंग कैंसर है. इसमें तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 30. वेरी गुड. ओवर हियर हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट. हाँ, इस यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग. मैं स्मोकिंग तो करता था बट मुझे डिजीज नहीं हुई है. तो कितना होगा यहाँ पे? कितना होगा यहाँ पे? 10. And over here, neither I have risk factor, neither I have disease, so it will be my 90. This is what you have to remember. ठीक है? टेबल बनाना है आपको कि कैसा I have to arrange these things. Yeah, other than Samarpit batch group, please reply also. समझ में आया आपको? If this is fine, then next step I have to learn about arrangement of this ABC. Just remember A, B, C, D. ठीक है? This is how you have to remember. अच्छा, यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B,
C, D. And then I have to do a cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे? ए को डी से करेंगे, बी को सी से करेंगे. सो दिस इज योर odds रेशियो is equals to AD by BC. AD by BC. This is what you have to remember. Now I am doing a cross multiplication. So that's why this scenario is also called as, this odds ratio is also called as cross product ratio. Cross product ratio. Over here, strength of association is given by this odds ratio. Now what does it mean? Same story. If the odds ratio is more than 1, association present. If the odds ratio is equal to 1, no association. If the odds ratio is less than 1, inverse or negative association. Negative association. Now also you have to remember कि इनके भी कुछ अलग अलग नाम है, कुछ synonyms नाम. This will be very easy. कैसे? देखो, it's not a forward looking. मैं आगे की तरफ नहीं देख रहा हूँ. I am taking the history. I am asking that patient as a history. So it's a backward looking स्टडी. ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोस्पेक्टिव, इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि पीछे का हिस्ट्री टेकिंग. ओवर हियर इफेक्ट टू कॉज. तो यहाँ पे ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका है, स्मोकिंग का इफेक्ट आ चुका है. इफेक्ट से कॉज की तरफ कि ये जो इफेक्ट आ चुका है इसका कॉज क्या था. सो दिस इज इफेक्ट टू कॉज. इफेक्ट टू कॉज. ऑल्सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस डिजीज टू रिस्क फैक्टर. आज क्या डिजीज है आपको, अब मैं रिस्क फैक्टर पूछ रहा हूँ. इसका क्या रिस्क फैक्टर था? स्मोकिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इफेक्ट टू कॉज स्टडी, डिजीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी. एंड आल्सो it is also called as like outcome to exposure study, obviously. And next we have case reference study, and also this is called as this Trohock study. Trohock study. Why do you mean by Trohock study? If you compare this case control study, so it's like reverse of this cohort study. Cohort study जैसी है उसका reverse है, right? So if you will read this cohort को आप इस डायरेक्शन में पढ़ोगे तो it will be Trohock. So that's why it is also called as Trohock study. ठीक है. Over here they can give you this visual question. Again मैंने क्या बताया आपको, एरोस पे फोकस करना है, एरोस पे फोकस. सो दिस इज केस. केस यानी कि डिजीज, कंट्रोल यानी कि नॉन डिजीज. ठीक है. सो केसेस वी आर गोइंग टू एक्सपोज and we are going to non-exposed. So this is your like looking back period, and this is what is called as case control study. So समझ में आया आप लोगों को about case control? Please respond. समझ में आया about case control study Yes, and sir. cohort study? Everyone clear with this again? ठीक है. Yes, sir. Okay, nice. Now we have to learn about this cross sectional study and ecological study. ठीक है. About cross sectional study आपको क्या ध्यान रखना है? Cross sectional study and ecological study are those study which are at a point of time. At a point of time. Let's say 2024 में मैं ये स्टडी को कर रहा हूँ at a point of time. क्योंकि देखो, केस कंट्रोल और कोहार्ट स्टडी हम आगे की तरफ करते, फ्यूचर की तरफ, इंसिडेंट्स. ठीक है. ओवर हियर केस कंट्रोल हम पास्ट की बात करते थे. इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी it's at a point of time like in 2024. And also this cross sectional study is done among the population. What we have to remember, smokers, let's say in a population smokers कितने, 40% smokers से लंग कैंसर कितने को है, 1%. हम ये एसोसिएशन नहीं देख रहे कि 40% स्मोकर से उसमें से 1% को लंग कैंसर. नो, there is not like that. This is not like that. बस एक पॉपुलेशन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि स्मोकर्स कितना है, 40% है, लंग कैंसर कितना है, 1% है. तो is it allowing me to calculate about incidence? No. Is it allowing me to calculate about this relative risk? No. Also not allowing me to calculate about odds ratio. It just give the prevalence. That's why this cross sectional study is also called as prevalence study. ठीक है. So over here जो cohort study था, that was allowing us to calculate incidence, also relative risk, which is very nearly accurate. If I talk about relative risk, if I compare to this odds ratio के compare में अगर हम करें तो relative risk ज़्यादा better होता है, ज़्यादा accurate होता है. That's why this cohort study is much better than case control. And then cross sectional study. Please remember this cross sectional study is also called as, please everyone write in the chat section, this cross sectional study is also called as cross sectional study, also called as prevalence study. This is what you have to remember. देखो, अगर आपको कभी भी कंफ्यूज होता है केस कंट्रोल क्रॉस
sectional. It is we are taking a section among the population. This is how you have to remember. Then we have ecological study. Ecological study का मतलब क्या होता है? Ecological study का मतलब क्या होता है? This is also at a point of a time. So it is mainly done for न्यूट्रिशनल सर्वेस के लिए हम करते हैं इसको. एंड लाइक फॉर एग्जांपल इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन एवरेज फैट इंटेक इज 20 ग्राम पर डे. सो दिस इज फॉर योर nutritional surveys. So that's why this ecological study is also called as study for survey, or we can say also known as correlational study. correlational study. ठीक है. I hope ये सबको क्लियर हुआ होगा. सीक्वेंस आपको याद रखनी, which is better, your this cohort study, then case control, then cross sectional study, and then ecological study. Please remember, केस कंट्रोल में तो कम से दिस क्रॉस सेक्शनल में तो मुझे ना इंसिडेंस मिल रहा था, ना आरआर मिल रहा था, ना ओआर मिल रहा था, बट मुझे प्रिविलेंस मिल रहा था. ओके. बट इन इकोलॉजिकल स्टडी नीदर आई एम गेटिंग इंसिडेंस आरआर ओआर, नीदर प्रिविलेंस. दैट्स व्हाई सबसे लास्ट में आता है. ठीक है. आई होप ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली कम्स ओवर दिस on RCT. If they ask you which study is better than this cohort study, please remember that this is your randomized control trial. randomized control trial. और अगर आपसे पूछेंगे which is best among all the this analysis, you have to remember it's a meta analysis. What do you mean by this meta analysis? देखो, meta analysis का मतलब ये होता है कि एनालिसिस का भी एनालिसिस. ना व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस का भी एनालिसिस मींस जब मल्टीपल स्टडीज को जब हम एक साथ में एनालिसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम मल्टीपल स्टडी, स्टडी का मतलब क्या है कि हमने उसका एनालिसिस किया है. अब मल्टीपल एनालिसिस को हम कंबाइन करके एक एक कॉमन एनालिसिस करते हैं. सो दिस इज दैट इज यू हैव टू रिमेंबर अबाउट मेटा एनालिसिस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन अ नटशेल. ठीक है. लेट्स से यू हैव दिस 96 स्टडीज को हमने एक सिंगल स्टडी में करके उसका एक सिंगल रिजल्ट हम लेके आ गए. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. सो सीक्वेंस, दिस इज द proper sequence and complete sequence. Meta analysis is better than RCT. ठीक है. RCT is better than cohort study is better than case control is better than cross sectional, and cross section is better than ecological study. ठीक है. This is what you have to remember. अच्छा, RCT से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आस्क यू हार्ट ऑफ RCT, randomization is to remove selection bias and also to remove confounding related to matching can be removed by this confounding. This is what you have to remember in a nutshell. ठीक है. समझ में आया सबको? ये जितने भी इपिडेमियोलॉजिकल के ये जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे, कोहार्ट, केस कंट्रोल, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, रेंडमाइजेशन पे इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है, दिस आई हैव ट्राइड टू कवर इन अ नटशेल. एवरीवन कंफर्टेबल सो फार सो गुड? इज माय स्पीड इज फाइन? प्लीज लेट मी नो. एवरीथिंग फाइन? मेरा स्पीड ठीक है? ज्यादा जल्दी तो नहीं है? समझ में आ रहा है? प्लीज लेट मी नो. Okay. Now, next question they will ask you related to clinical trials. देखो, clinical trials में मुझे क्या रखना है? clinical trials से पहले एक और ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल. That is for animals. That will be for animals. उसमें जो individual unit क्या होगा? Animals. Now let's read about clinical trials. We have phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. ठीक है. अच्छे से याद रखना है. every point, highlighted point is a question. Every highlighted point is a question. We cannot miss one mark. You never know कि 149 से 150 की कहानी कब आ जाएगी. ठीक है. So it's better this will be considered as easy questions, PYQs. ठीक है. It's not even PYT, it's all PYQ. ठीक है. So this is what you have to remember. ठीक है. So phase 0 में individual unit क्या होगा? ह्यूमन हेल्दी इंडिविजुअल, ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. पर्पस क्या है इसका? माइक्रो डोजिंग. कितना? दैट इज 1/10 ऑफ दैट पर्टिकुलर डोज. फेज 1 में क्वेश्चन क्या आएगा? इन विच फेज मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इज एक्चुअली calculated over here, or we can say introduced. So this is your phase 1. Over here also the unit will be human healthy volunteers and the purpose. Remember phase 1 का purpose क्या होता है?
to assess the safety and non-toxicity. Obviously, non-toxicity और safety हम किस में देखेंगे? Human healthy volunteers में. Next question, they can ask you maximum failure of a drug in which phase? It will be in phase 2. phase 2. ठीक है, इसमें units क्या होंगे? Patient. Why? Because my purpose is to check efficacy. Obviously हेल्दी इंडिविजुअल्स में तो मैं एफिकेसी देखने नहीं जाऊंगा उस पर्टिकुलर ड्रग की, क्योंकि मुझे उसका देखना है कि रिजल्ट क्या है. तो ऑब्वियसली डिजीज जो पेशेंट्स होंगे उसमें मुझे इस पर्टिकुलर ड्रग का result पता चलेगा. So that's why efficacy is in phase 2, and that's where maximum failure also takes place in phase 2. Next question related to phase 3. phase 3. अच्छा, किस phase में we introduce this RCT? RCT, that is your randomized control trial, is usually done at the phase 3. अगर कभी भी कंफ्यूज होते हो तो प्लीज रिमेंबर C as a 3, phase 3. ठीक है, इसमें patients will be your unit and purpose will be to actually कंपैरिजन विद दिस एग्जिस्टिंग ड्रग. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है, और हम आरसीटी में क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग है नए ड्रग को उसको कंपेयर करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी ड्रग if it is like launched in a market, it what phase? Phase 4. And the individuals will also be patients over here, and purpose is long term and rare side effect. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है. They will ask you this question. phase 4 का units will be patients, and for purpose इसका लॉन्ग टर्म एंड रेयर साइड इफेक्ट. ये दोनों याद रखना है. ठीक है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी मुझे देखना है और रेयर साइड इफेक्ट भी मुझे देखना है. अगर क्वेश्चन में आपको दोनों then you have to mark this both of the question. If they ask you one among the, please remember long term में prefer करो. ठीक है, और क्या याद रखना, फेज 4 को हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज रनिंग. द ड्यूरेशन इज यूजुअली चलता ही रहेगा, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इट विल बी रन. if they ask you related to this question, please remember 10 to 25 year, 10 to 25 year. ठीक है, that's what you have to remember. Drug launched of 3 after third phase. Yeah, so देखो ना, new drug launched in the market after phase 3, ठीक है. So this is what you have to relate, this is what you have to remember clinical trials. ठीक है, so I'll give you a little 2 minutes का ब्रेक. फटाफट हमने जो भी देखा है एक बार उसको जाके रिवाइज करो. ठीक है, सो जिसके पास पीडीएफ नहीं है, एक्चुअली दिस पीडीएफ will be provided to Samarpit batch students, and if you want to take screenshots, you are most welcome to take screenshot. There's no issue because वहाँ पे already a lot of PDFs been shared, so it's difficult to share every individual PDF. ठीक है, so that's why if you want to take screenshot, you are most welcome to take screenshot लेके revise करो. ठीक है, I don't have any issue with that. ठीक है, now and this two you have to revise, this two things you have to revise. Who is actually scribbling with me? Scribbling यानी कि हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख लेता हूँ, याद है मुझे. Who is doing this? Anvesha, Sheetal, yeah, Sameer, Hemant, very good Hemant. Nafiza, doctor. Sir, I just joined the batch from where I got PDF. Actually, okay, I'll share this time. Just a second. Yeah, you can take that PDF from WhatsApp group also, because उसमें जितने भी important टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी उसमें शेयर किए हैं. ठीक है, so you can take from that also, but it's better you can take screenshots from this particular. आप स्क्रीनशॉट ले लो, नो इशू विद दैट. यू विल बी एबल टू रिवाइज दोस थिंग्स, डोंट वरी. ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड दिस आल्सो. ठीक है, एंड रिलेटेड टू टॉपिक्स ऑलरेडी पीडीएफ ग्रुप में है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सो रिवाइज किया सबने, रिवाइज किया? सो फार सो गुड, वी शुड मूव फॉरवर्ड. प्लीज रिस्पॉन्स, आगे चलें. ओके, या
Now let's discuss about this TD. देखो और क्वेश्चन क्या आ सकता है related to this doses of TD. TD डिप्टीरिया एंड टिटनस के वैक्सीन पे इंजेक्शन आ सकता है. प्लीज रिमेंबर, if she or she is primary gravida, then we have to give 2 doses. अच्छा, कब देना है? जब भी वो आए, as soon as possible, as soon as possible we have to give this 2 doses of TD. ठीक है. कितने गैप में? 1 dose आज दिया तो नेक्स्ट मंथ वी विल गिव अनदर डोज. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू, if next pregnancy is within 3 years, if next pregnancy is within 3 years, then we have to give just one booster dose. That is also as soon as possible. ठीक है. तो ये हमारा टिटनस और डिप्थीरिया पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू डेमोग्राफिक साइकिल्स. प्लीज एवरीवन एक बार ग्रुप में शेयर कर दो जिसके पास भी वो पीडीएफ है. दिस पीडीएफ इज यूजुअली टू दी समर्पित बैच स्टूडेंट्स only, but related to topics I have already shared in the public group. So let's discuss about this. You can take screenshots, I don't have an issue. ठीक है. Let's talk about this demographic cycles में we have these 5 stages. कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको आप लोगों को कैसे सिखाया था? हेल्थ. ठीक है. H for high stationary stage, E for early expanding stage, then L for late expanding stage, L for low stationary stage, and D for declining stage. यहाँ पे क्राइटेरिया हम क्या यूज करेंगे? दिस CBER crude birth rate and this is your crude death rate. Please remember, usually high stationary stage में we have to remember about high एंड हाई क्या? यहाँ पे हमारा बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा. इसको हमको कैसे याद रखना है? देखो, इसको हमको कैसे याद रखना है? वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस कि अच्छा, एक कोई भी नई कंट्री स्टेब्लिश हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें बर्थ रेट भी ज्यादा होगा और डेथ रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी और वो सब कुछ अभी क्या होगी? बहुत लो होगी. सो दैट्स व्हाई डेथ रेट भी ज्यादा होगा. इफ आई कंपेयर टू दिस अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, दैट इज आवर स्टेज 2. अब क्या होगा? धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेगी कुछ, तो वहां पे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा डेथ रेट जो है इट विल बी स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड बर्थ रेट विल still be high. Why? Because population is actually expanding in that particular new country. Next we have this late expanding stage में क्या याद रखना है कि अब क्या हो गया है कि जब population ऑलरेडी इतनी एक्सपांड हो गई है, नाउ कुछ फैमिली हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस बर्थ रेट भी क्या होगा? इट विल स्टार्ट आल्सो डिक्रीजिंग, एंड दिस death rate is already decreased, so over here also it will be further decreasing. Next we have this low stationary stage जिसमें birth rate भी low हो जाएगा और this CDR will also be low. This is what you have to remember. And in declining phase of population याद रखना है D से declining, D से death. तो क्रूड डेथ रेट जो है वो ज्यादा होने लगी इफ आई कंपेयर टू बर्थ रेट. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. ओवर हियर प्लीज रिमेंबर दैट इसी सेक्शन को हमको इस ग्राफ से याद रखना. दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी टू रिमेंबर दिस. इसमें जो भी लेबलिंग है वो आपको याद रखना है. दे कैन आस्क यू बाय गिविंग दिस ग्राफ आल्सो. दिस इज अ डेमोग्राफिक साइकिल. यू हैव टू रिमेंबर दिस blue line and pink line. You have to remember this pink line is related to birth rate and this blue line is related to death rate. देखो, this you have to remember, this is my high stationary, this is your early expanding, this is your late expanding, this is your that low stationary and this is your declining phase. तो ये आपको ऐसे याद रखना. जस्ट अ सेकेंड, आपको याद रखना है कि ये फेजेस आपको याद रखना है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दिस दैट इन हाई स्टेशनरी स्टेज में हमारा जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रहेगा. रिलेटेड टू दिस अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होगा कि हमारा बर्थ रेट स्टिल हाई बट डेथ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ठीक है. व्हाई? बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज अब स्टार्ट होने लगी है. ओवर ईयर इन लेट एक्सपांडिंग स्टेज प्लीज रिमेंबर it also start decreasing because of some health family programs वगैरह start कर दिए. So and this is already decreasing. So this is what you have to remember. And at low stationary stage में क्या होगा? दोनों लो रहेंगे. And over here in declining stage this death rate will be higher than birth rate. तो क्या चीज नटशेल में याद रखना है? स्टेशनरी. It is high stationary
लो स्टेशनरी, दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे दोनों हाई रहेंगे, सीडीआर सीबीआर, और यहाँ पे स्टेशनरी दोनों लो रहेंगे। लो स्टेशनरी दैट इज सीबीआर और सीडीआर दोनों लो रहेंगे। अर्ली एक्सपांडिंग में और लो एक्सपांडिंग में आपको याद रखना है, ठीक है। एंड दिस इज योर डिक्लाइनिंग, ठीक है। दिस रेड लाइन इज रिलेटेड टू दिस टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। Please remember, if any country who that is moving from high birth rate or death rate to low birth rate and death rate, ऐसी कंट्री जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट से एक्चुअली ट्रांजिशन फ्रॉम दिस लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड एज demographic transition. Please remember this definition. They will ask you related to this demographic transition क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल ऑल्सो आस्क यू दिस इपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो पीएसएम में दो ट्रांजिशन के डेफिनेशन आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। epidemiological transition means movement of a country as it develops from this communicable disease to non-communicable diseases. Like starting में this mumps, measles, rubella के केसेस ज्यादा होते थे, अब कम होने लगे। Why? Because हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, इतने वैक्सीन प्रोग्राम, सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होने लगी इफ वी कंपेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम्स कम हुआ करती थी, कैंसर्स की प्रॉब्लम कम हुआ करती थी, बट नाउअडेज there is increase in the diabetes, hypertension and this, so this something is called as epidemiological transition, ठीक है। मुझे epidemiological transition समझ में आया, मुझे demographic transition समझ में आया, and I hope you are very comfortable with this demographic cycle। समझ में आया demographic cycle सबको? यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज। मैंने ग्राफ को भी अच्छे से टाइम देके समझाया, सो दैट यू कैन नॉट डू रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस बीएमडब्ल्यू। व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ में आया? देखो Yes, डेमोग्राफिक sir. क्या है? देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है डॉक्टर साहब, इट्स लाइक इफ अ कंट्री मूविंग फ्रॉम हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, देखो यहाँ पे क्या था, हाई डेथ रेट था, सॉरी हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है। कोई भी कंट्री का हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, if that country is particularly transitioning to this low birth rate and low death rate, this is called as epidemiological transition. This is called as epidemiological transition, and India is obviously in phase 3, that is late expanding stage। समझ में आया डॉक्टर साहब? दिस इज योर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ ये जो जाना है, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। एंड रिलेटेड टू दिस, yeah, this is demographic transition, yeah, ठीक है। next we have to relate, next we will talk about this this BMW red category, white category, blue category and yellow category, ठीक है। I'll be very quick in this because I am hoping कि most of you guys know about these things, ठीक है। red category में you have to remember this is related to this कंटामिनेटेड और वी कैन से रिसाइक्लेबल वेस्ट। कोई भी कंटामिनेटेड और रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा, लाइक प्लास्टिक, रबर। प्लीज रिमेम्बर प्लास्टिक, रबर। इवन प्लास्टिक में क्या आ सकता है, लाइक ग्लव्स, यूरो बैग, plastic part of that syringe, or we can say Ryle's tube, Foley's catheter. So this all will be under red category. Red category. Plastic with blood bag will always go in this yellow category. नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू रिलेटेड टू दिस, कि इनको हम एक्चुअली डिकम्पोज कैसे करेंगे, और वी कैन से डिसइंफेक्ट, दैट इज हाइड्रोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, व्हिच इज फॉलोड बाय दिस डिस्ट्रक्शन एंड श्रेडिंग इनटू अल्टीमेटली रोड मेकिंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दिस इज योर रेड कैटेगरी। नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी में प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ बैग, इट्स अ कंटेनर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये कंटेनर होगा तो इसमें हम कौन से सर्जिकल ब्लेड्स डाल सकेंगे। ऑब्वियसली बैग रहेगा तो सर्जिकल ब्लेड्स नहीं डाल पाएंगे, सो दैट्स व्हाई सर्जिकल ब्लेड्स। ऑब्वियसली दिस निडल पार्ट ऑफ syringe, scissors, scalpel, this is what you have to remember, and ultimately we will go for this autoclaving and then destruction, shredding, and ultimately proceeding for this iron foundries and landfill sharp bits। तो दिस रेड कैटेगरी आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाइट कैटेगरी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आज के रिलेटेड टू दिस ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में हमको क्या याद रखना है, मेटेलिक इम्प्लांट्स और एनी ग्लास वेयर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल
वाइल्स के बारे में अगर आपसे पूछेंगे, वाइल्स के बारे में, ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर ग्लास वाइल्स विल बी इन दी ब्लू कैटेगरी. मेटेलिक इम्प्लांट्स लाइक पेस मेकर्स ऑल्सो दे कैन आस्क यू, लाइक डेंटिस्ट में, कार्डियो सर्जरीज के, ऑर्थोपेडिक्स, इनके जितने भी मेटेलिक इम्प्लांट्स है, दैट विल बी thrown to this blue category, and ultimately by this chemical treatment they will be used for this recycling. ठीक है, so this is your blue category. ठीक है, अगर हमको ये क्लियर हुआ कि ठीक है, कोई भी लाइक शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई भी मेटेलिक शार्प ऑब्जेक्ट से, लाइक दिस सर्जिकल ब्लेड, निडल पार्ट ऑफ अ सिरिंज, सीजर, स्कैल्पल, ठीक है, दैट विल बी इन व्हाइट कैटेगरी. कोई भी प्लास्टिक या रबर है, रेड कैटेगरी. ब्लू कैटेगरी में मेटेलिक इम्प्लांट्स या फिर ग्लास वेयर, इट विल बी ब्लू. नाउ रिमेनिंग ऑल will be under yellow category. ठीक है, सो ओवर हियर येलो कैटेगरी में हमको क्या याद रखना है, प्लीज 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 रिमेंबर, फर्स्ट यू टू रिमेंबर कि ये जो भी हम करेंगे, उनका जो डिस्पोजेबल मैकेनिज्म है, दैट विल बी इंसिनरेशन. इतना हमको याद रखना ही रखना है, एटलीस्ट इंसिनरेशन. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट. अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या आ सकता है, लेट्स से आफ्टर स्प्लीनेक्टमी स्प्लीन बचा है, उसको किस में डालेंगे, येलो कैटेगरी में. मे बी आफ्टर अपेंडिसाइटिस और या फिर आफ्टर अपेंडेक्टमी अपेंडिक्स बचा है, उसको कहाँ डालेंगे, येलो कैटेगरी में. अबाउट दिस प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी, obviously yellow category में डालेंगे. And this amputed fingers, that will also be in this yellow category. तो ultimately if they ask you human anatomical waste, they will not ask you in this common ये बड़ी टर्म में, they will give you such examples. ठीक है, this is what you have to remember. Also एक्सपेरिमेंट्स में हम एनिमल्स यूज करते हैं, उनको भी हम येलो कैटेगरी में डालेंगे, एनिमल वेस्ट. एंड एनीथिंग दैट इज सॉइल्ड विथ, एनीथिंग में क्या आ सकता है, लाइक बैंडेजेस, मे बी ड्रेसिंग, गॉस पीस और स्वाब, ये सब अगर दे आर सॉइल्ड विथ पस और वी कैन से ब्लड, that is cloth and this cotton, that will also be thrown in the yellow category. If I ask about this chemical waste or we can say cytotoxic, देखो cytotoxic drugs कौन से होते हैं, like anti cancer drugs. Obviously discarded medicine कौन सी हो सकती है, जैसे कि हमारा expired medicine, so that will also be thrown in the yellow category. If they ask you related to this microbiology or we can say this biotech waste, this microbacterial or we can say this biotech waste, or we can say this sera, anti-sera will also be thrown in yellow category. Yeah. If they ask you related to this live vaccine or we can say this toxin cultures, that will also be thrown in this yellow category. अब live vaccine like obviously BCG वगैरह सबसे याद रखना है आपको. ठीक है, please remember any bed linen or mattresses will also be thrown in this yellow category. ठीक है, this is what you have to remember. While broken while or we can say over here blue category. ठीक है, next you have to remember, if they ask you any liquid waste, कौन सा liquid waste, like in which is generated after disinfection, first that liquid waste has to be neutralized by this chemical treatment and then we have to drain it. But please remember over here, ये जितने भी मैंने examples लिए हैं, in a nutshell you have to remember it is incineration. ठीक है, next question, if they ask you related to this, आइडियली प्लेसेंटा का क्या होना चाहिए, आइडियली प्लेसेंटा का इंसिनरेशन होना चाहिए. बट इन केस लाइक इट्स स्मॉल पीएचसी जहां पे इंसिनरेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पे लाइक फॉर एग्जांपल पीएचसी, आई विल गो फॉर दिस डीप बरियल. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बीएमडब्ल्यू, यू हैव टू रिमेंबर. इसमें से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. सो फार सो गुड, समझ में आया. ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को. Okay, good. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only nine students are only responding. What about others? सारे बच्चे जितने भी हैं सबको रिस्पॉन्स करना है. नेक्स्ट, Yes, sir. या Next. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस हेल्थ केयर लेवल्स. देखो हेल्थ केयर लेवल्स में हमको ये क्या याद रखना है, हेल्थ केयर लेवल्स में हमको याद रखना है, दिस इज योर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी. प्लीज रिमेंबर, primary level of healthcare, that is PHC, sub center.
CHC is your secondary healthcare level, which is also termed as first referral unit and tertiary second referral unit. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. और क्वेश्चन क्या आ सकता है? They can ask you first contact level between population health system of the country. It's the प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा सब सेंटर आएगा, सब सेंटर आएगा. ठीक है. रिलेटेड टू दिस पॉपुलेशन नॉर्म्स, रिलेटेड टू दिस प्लेन्स, हिली, बेड एंड स्टाफ आपको याद रखना है. प्लीज प्लीज रिमेंबर रिलेटेड टू दिस प्राइमरी और सेकेंडरी में. इफ आई आस्क यू टू रिमेंबर अबाउट दिस सब सेंटर, एक सब सेंटर 5000 पॉपुलेशन में होना चाहिए एट द प्लेन्स, एक सब सेंटर होना चाहिए इन दिस 3000 पॉपुलेशन एट हिली एरियाज. ठीक है. Also about bed, please remember 2 beds. Staff 3 to 4, 3 to 4. About PHC, please remember 30,000 population में एक PHC होना चाहिए, and this one PHC for 20,000, for 20,000. Next, for beds, it's 4 to 6 beds, and for staff, please remember 13 to 21, 13 to 21. This is what you have to remember. ठीक है. Most welcome, Dr. Sab. You are explaining very greatly. Thank you. Yeah, most welcome. Next, related to this CHC, that is one CHC for 1,20,000. Please remember, very, very important this. And related to the hilly, one CHC for hilly population, it is 80,000. Or for beds, please remember 30 beds. And staff में आपको याद रखना है 46 to 52, 46 to 52. ठीक है. Now let's ask some questions. आप देख के भी बता सकते हो. It's better if you recall it. It's better if you recall it. Please tell me कितने बेड होने चाहिए PHC पे. PHC पे कितने बेड होने चाहिए? 4 to 6. 4 to 6. Good. What about let's say staff at CHC? CHC पे staff कितना होना चाहिए? 4 to 6. देखो, why I am asking, please do not get confused. Beds 4 to 6 at PHC. Staff at secondary at CHC, that is your 46. It is 4 to 6. ठीक है. So do not get confused. Very, very important. ठीक है. Now, how many total PHCs are functioning in India? कितनी है? कितनी है? 25,000. 25,000. Next question they can ask you related to this. Health, school health is a responsibility of, school health is a responsibility of PHC. PHC, this is what you have to remember. Very, very important. ठीक है. Also, let's discuss about this sub center PHCs and CHC. देखो, most of the key important things related to PSM I have already, yeah, they can ask you this time also, Doctor Sahab. They can ask you this time also. या व्हाट आई वाज टॉकिंग. देखो, कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टॉपिक सेक्शन में भेज दिए. टॉपिक सेक्शन जो हमारा बूस्टर सीरीज का जो टॉपिक सेक्शन है उसमें ऑलरेडी भेज दिए. तो यू माइट बी, आई एम अज्यूमिंग कि आपने उसको रिवाइज किया होगा. सो दिस इज योर अगेन रिवीजन फॉर दोस थिंग्स आल्सो. सो लेट्स सब सेंटर पीएचसी और सीएचसी के बारे में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. सब सेंटर पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो, अच्छे से याद रखना है कि सब सेंटर टाइप ए टाइप बी. अच्छा, पीएचसी भी टाइप ए टाइप बी होता है. याद मुझे क्या याद रखना है कि वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी फैसिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अब याद क्या रखना है? टाइप ए सब सेंटर, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, बट यस इट इज अवेलेबल ऑन इन टाइप बी. कैसे याद रखेंगे? बी फॉर बच्चा, बच्चा मीन्स डिलीवरी, सो दैट्स व्हाई डिलीवरी फैसिलिटी इज ऑन टाइप बी. ठीक है. स्टाफ में हमको याद रखना है दिस एमपीडब्ल्यू, मेल एमपीडब्ल्यू टाइप ए में 1 होगा, टाइप बी में भी 1 होगा. दिस एमपीडब्ल्यू फीमेल और वी कैन से ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ विल बी इन दिस टाइप ए 1, बट टाइप बी में 2 होगा, 2 होगा. बी फॉर 2, दैट इज 2 स्टाफ. बी फॉर बच्चा, दैट इज डिलीवरी फैसिलिटी, ये भी हो जाएगा. हेल्पर 1 1. सो इफ आई कंपेयर दिस, टाइप ए विल बी हैविंग टोटल 3, टाइप बी विल बी हैविंग 4. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. सब सेंटर के बारे में, दैट इज व्हाट यू सी ओवर हियर. सब सेंटर में कितना स्टाफ है? 3 to 4, 3 to 4. समझ में आया? समझ में आया? 3 to 4 स्टाफ. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर रिलेटेड टू दिस पीएचसी. पीएचसी में क्या रखना है? टाइप ए टाइप बी. अच्छा,
इसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरीज और वी कैन से मंथ्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज, यानी कि इफ ऑन दैट पर्टिकुलर पीएचसी, अगर किसी पीएचसी पे 20 से कम अगर डिलीवरी हो रही है तो मैं उसको बोल दूंगा टाइप ए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पीएचसी पे 20 से ज्यादा डिलीवरी, मोर देन 20 डिलीवरीज टेकिंग प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर पीएचसी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइप बी। इफ आई टॉक अबाउट एमबीबीएस डॉक्टर, अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर लेवल्स पे कहाँ पे होगा? एट पीएचसी। पीएचसी, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि दिस इज द लोवेस्ट लेवल एट वेयर अ एमबीबीएस डॉक्टर इज अवेलेबल, ठीक है। सो टाइप ए में कितना होगा? वन डॉक्टर, वन डॉक्टर। टाइप बी में टू डॉक्टर्स, ठीक है। आयुष डॉक्टर वन, टाइप बी में भी आयुष डॉक्टर वन। अबाउट दिस हेल्थ असिस्टेंट मेल फीमेल वन 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 वन। इफ यू कैलकुलेट टाइप ए में कितना हो जाएगा? 13 टू 18, 13 टू 18। एंड टाइप बी में कितना होगा? 14 टू 21, 14 टू 21। और हमने पीएचसी में क्या पढ़ा? यही तो हमने पढ़ा है। इफ यू लुक ओवर हियर, एक था 13 से 18, एक था, जस्ट अ सेकेंड, एक था 13 से 18 टाइप ए में, और टाइप बी में कितना था? 14 टू 21। सो ओवर हियर इफ यू लुक एट हियर 13 टू 21, 13 टू 21 इज योर स्टाफ नंबर्स फॉर पीएचसी। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमारा सब सेंटर पीएचसी टाइप्स क्लियर हुए? टाइप ए, टाइप बी, नंबर ऑफ स्टाफ्स कैसे आया, सब कुछ क्लियर हुआ? आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। यू विल नॉट रेक्टिफाई दिस थिंग्स, वेरी वेरी इजी। व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज रिप्लाई मी। समझ में आया कि कैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है? आई होप, प्लीज 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 रिमेंबर दिस, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी, ठीक है। रिलेटेड टू दिस सीएचसी, देखो सीएचसी में हमको क्या याद रखना है? एमडी और एमएस स्पेशलिस्ट टोटल 9, ठीक है। पहले हमको फिजिशियन चाहिए, सर्जन चाहिए, ऑब्स गाइनी, पीडियाट्रिक्स, टोटल 4। देन वी हैव एडेड, अच्छा सर्जरी ऑब्स गाइनी है तो हमको एनेस्थेसिस्ट भी चाहिए, ऑब्वियसली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। पीएसएम के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती, तो दैट इज योर रिलेटेड। एंड नेक्स्ट you have to remember dental surgery surgeon and also आयुष डॉक्टर। this is what you have to remember, total 9 available at CHC, ठीक है। I hope things are very very clear to you. Next we have to, तो ये सबको क्लियर हुआ? आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क ऑन दिस क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वैक्सीन के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन देते हैं। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस, देखो ऑलरेडी ये क्लासेस तो बहुत डिटेल में हुई है समर्पित बैच में। अगर इफ यू वांट टू रिवाइज दिस वैक्सीन एंड कोल्ड चेन, I have tried to simplify it in the Samarpit batch. If you want to watch that video, I have already uploaded in our FMG वाला जो YouTube चैनल, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। इट्स फ्री फॉर एवरीवन, अगर आपको देखना है यू आर मोस्ट वेलकम टू गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर सेक्शन। उसमें से और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आई एम रिवाइजिंग ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि कम समय में हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो फॉर क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन? देखो लाइव क्लासिफिकेशन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड, प्रोटीनेशियस, पॉलीसेकेराइड, और वी कैन से दिस ग्लाइकोकंजुगेट, दिस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। देखो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट अभी तक याद करना, बट आई हैव अ निमोनिक फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दिस। देखो लाइव वैक्सीन को याद अगर आपको रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस निमोनिक, लाइव टीवी बूमरे। व्हाट डू मीन बूमरे? बूमरे इज अ चैनल, किसका? टीवी का। टीवी तो लाइव चलती, ठीक है। लाइव टीवी बूमरे, ऐसे याद रखना है आपको। सो लाइव मतलब कि लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। टीवी, टी फॉर टाइफोरल, वी फॉर वेरिसोला, ठीक है। लाइव टीवी, टाइफोरल, वेरिसेला। Now Boomray, B for BCG, O for OPV, M for measles, M for mumps, R for rubella, R for rotavirus vaccine, and Y for yellow fever. I hope ये नाम तो आपको ऑलरेडी याद होगी। You just have to arrange them in ordered way. इस न्यूमोनिक से it will be very very helpful, ठीक है। So again, live TV boom ray, लाइव वैक्सीन, टी से हमारा हो जाएगा टाइफोरल, वी से हो जाएगा हमारा वेरिसेला, बी से हो जाएगा बीसीजी, ओ से हो जाएगा ओपीवी, एम से हो जाएगा मीजल्स, एक और एम से हो जाएगा मम्स, ठीक है। आर से प्लीज रिमेंबर इट्स रूबेला, एक और आर से इट्स नॉट रेबिस, इट्स माय आरवीवी, दैट इज रोटा वायरस वैक्सीन। एंड लास्ट हमारा बचा वाई, येलो फीवर, येलो फीवर, ठीक है। दिस विल बी लाइव वैक्सीन, डन। किल्ड वैक्सीन को कैसे याद रखूंगा? किल्ड वैक्सीन को याद रखने के लिए माइकल जैक्सन को हम याद रखेंगे। माइकल जैक्सन को हरी पसंद है। देखो
पसंद से you have to remember just P. Hari means God. Michael Jackson is already dead, that is killed. ठीक है, dead killed. Went to Hari, that is God. ठीक है, this is how you have to remember. माइकल जैक्सन को हरी पसंद है. नाउ एम जे, एम मतलब हमारा मेनिंजोकोकल हो जाएगा, मेनिंजोकोकल हो जाएगा. जे से हमारा हो जाएगा जापानीज किल्ड. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट किल्ड वैक्सीन. तो हमारा माइकल जैक्सन इज किल्ड एंड वेंट टू हरी, हरी. सो सी ओ को मीन्स कोवैक्सीन, हरी मीन्स एच ए मीन्स हेपेटाइटिस ए, आर से हो जाएगा हमारा रेबिस, आई से हमारा हो जाएगा आईपी, एंड पी से पर्टुसिस, पर्टुसिस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. किल्ड वैक्सीन के बारे में कैसे याद रखेंगे? माइकल जैक्सन को हरी पसंद. माइकल जैक्सन, एम फॉर हमारा मेनिंजोकोकल, जे फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस किल्ड वाला, कोवैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन. ठीक है. एच ए यानी हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, आर से हो जाएगा हमारा रेबिस, आई से हो जाएगा आईपीवी, आईपीवी. समझ में आया आप लोगों को कि लाइव वैक्सीन कैसे याद रखना है, किल्ड वैक्सीन कैसे याद रखना है? यू जस्ट हैव टू अरेंज इन दिस न्यूमोनिक फॉर्म. वेरी वेरी इजी एंड इट विल हेल्प यू, बिलीव मी. ठीक है. जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे इट विल बी इन योर रिफ्लेक्स एंड इन अ सेकंड, इन अ 2 seconds यू विल बी एबल टू क्लियर. टॉक्सोइड में तो सबको पता है, टीडी, डिप्टीरिया एंड टिटनस, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोटीनिशियस. अच्छा, प्रोटीनिशियस कौन कौन सी होती है, इसको याद रखने के लिए क्या न्यूमोनिक है मेरे पास? प्लीज रिमेंबर दिस. देखो, प्रोटीन का क्या होता है, या तो आप याद रख लो प्रोटीन को, प्रोटीन का कोर होता है, और वी कैन से या तो फिर प्रोटीन का पैक आता है, राइट? सो प्रोटीन पैक, प्रोटीन पैक. सो प्रोटीन से याद हो जाएगा प्रोटीनिशियस, पी से हो जाएगा पर्टुसिस, ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स, और सी से हो जाएगा कॉर्बेवैक्स, कॉर्बेवैक्स. अब कहीं में कंफ्यूज ना हो जाए यार, सी से कोवैक्सीन था या कॉर्बेवैक्स था, नहीं. याद मुझे ये रखना है, दिस इज योर कोवैक्सीन. तो बेटर टू रिमेंबर कोर प्रोटीन पैक, कोर प्रोटीन पैक. तो कोर से याद हो जाएगा इट्स कॉर्बेवैक्स, ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स, और पी से हो जाएगा पर्टुसिस, पर्टुसिस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. Now, for polysaccharide, please remember it's typhi IMVI, typhim V. IM यानी कि this is your to remember IM लगाते हैं, ठीक है. And this glycoconjugate. तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए this polysaccharide or glycoconjugate origin, please remember PM HIB, high PM, high. This is what you have to remember, high brother PM. कैसे भी याद रखो, हाई से हो जाएगा हाई HIB मींस HIB हमारा इन्फ्लुएंजा, पी से हो जाएगा न्यूमोकोकल, एम से हो जाएगा मेनिंजोकोकल. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? दिस न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल एंड HIB आर पॉलीसेकेराइड और एंड आल्सो ग्लाइकोकंजुगेट. रिमेंबरिंग दिस लास्ट वन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी. ये तो आई होप सबको आता होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस ए क्या है, हरी को, हरी HA दैट इज किल्ड, तो किल्ड वैक्सीन. हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. नेक्स्ट, last but not least, please remember this non-replicating viral vector based vaccine is Covishield and Incovac. तो ये तो नई वैक्सीन से, ये आपको इजीली याद हो जाएगी. ठीक है, ये समझ में आया, क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा. क्लासिफिकेशन अब थोड़ा इजी लगा पहले से. न्यू स्टूडेंट समर बिट बैच वालों को तो मैंने ऑलरेडी इसी तरीके से पढ़ाया था, एंड आई होप कि ये आपका रिवीजन हो गया. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? गुड. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है. दिस टाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो इसको, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है. इफ यू विल ट्राई टू लर्न इन दिस वे, इट विल लिटिल बी हेल्पफुल. ठीक है, रेदर देन जस्ट स्किपिंग दिस और क्वेश्चन गलत करने की बजाय. मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद पैरालिसिस, ऑब्वियसली इसमें तो किसी को कोई गलती नहीं होती होगी. पैरालिसिस से ओपीवी, ओपीवी लाइक फॉर VAPV दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, दैट इज फॉर P3 strain. For this VDPA, please remember vaccine derived polio virus, that is CP2, C यानी community subtype. ये आपका हो जाएगा पैरालिसिस, OPV. इन अ नटशेल ये याद रखना है. Most common associated with hypersensitivity, most common associated with hypersensitivity, hepatitis B, hepatitis B. Most common associated with shock, hepatitis B. Also, please remember, if they ask you to remember about this
Most common associated with thrombocytopenia, MMR and hepatitis B, MMR and this hepatitis B. अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे ऐसे, देखो, this is something a shock का sign, a shock का sign. Over here I have wrote this hepatitis B. Hepatitis B की वजह से एक तो शॉक हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑल्सो देयर कैन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अच्छा, ये याद रखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, MMR ऑल्सो कॉजेस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है, ये इन अ नटशेल ये तीन चीज हमारी क्लियर हुई. नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस मोस्ट कॉमन एसोसिएट विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इट्स मीजल्स. मीजल्स. अब मीजल्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी मीजल पे मैं एल को टी बना दूं, तो it will become my toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome, this is what you have to remember. अच्छा, this measles can is also associated with febrile seizures. तो इस S को मैंने कैसे बना दिया? S for seizure, S for febrile. ठंड लग रही है, shaking, right? So this is your febrile seizure. Febrile seizure, this is what you have to remember. ठीक है, so this is you have to remember. Next you have to remember most common associated with fever, that is pertussis. Pertussis. Most common associated with GBS, that is killed influenza vaccine. Killed influenza vaccine. ठीक है, most common associated with इंटरसेप्शन, प्लीज रिमेंबर, इंटरसेप्शन में रोटावायरल वैक्सीन, ये आपने सर्जरी में भी पढ़ा होगा. मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद लिम्फेडिनोपैथी, बीसीजी. बीसीजी. ऑस्टियोमाइलाइटिस, बीसीजी. इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, ऑब्वियसली बी, बीसीजी, बी फॉर बोन. बोन इज स्लाइटली, हमको लगता है इट इज एसोसिएटेड विद टुगेदर एसोसिएटेड विद लिम्फ, ऐसे याद सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस बीसीजी और दिस बोन is associated with this osteomyelitis and also lymphadenopathy. Lymphadenopathy. ठीक है. Next what we have to remember, about this brachial neuritis, which is most common associated with brachial neuritis, TT. TT. अब इसको कैसे याद रखेंगे? न्यूराइटिस. क्या मैं ब्रेकियल न्यूराइटिस की स्पेलिंग को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ. सो इट बिकम्स टीटी. टीटी. तो न्यूराइटिस, टीटी. ठीक है. नेक्स्ट अबाउट दिस persistent crying, pertussis. Pertussis about hypotensive hyporesponsiveness, pertussis. ठीक है, तो इसी को हम वापस रिवाइज करते हैं. लेट्स रिवाइज फ्रॉम ओवर हियर. हेपेटाइटिस बी में मैंने क्या पढ़ा? मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद शॉक, हेपेटाइटिस बी. मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस बी. मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपेटाइटिस बी. अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैन आल्सो बी बिकॉज एसोसिएटेड विद दिस एमएमआर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पर्टोसिस. पर्टोसिस से क्या क्या? या आई जस्ट प्लग योर चार्ज, जस्ट अ सेकंड, वेट. नाउ प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस पर्टोसिस. पर्टोसिस के बारे में याद रखना है, हाइपोरिस्पॉन्सिवनेस. हाइपोरिस्पॉन्सिवनेस, पर्टोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम पी, हाइपोरिस्पॉन्सिवनेस आल्सो पी. ठीक है. पर्टोसिस, पर persistent crying, persistent crying. Fever can be written as fever. So fever, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड परसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा पर्टोसिस. ठीक है, ये भी हमारा हो गया. अबाउट बोन एंड लिम्फ, they usually remain together, so this is your osteomyelitis, lymphadenopathy, हमारा बीसीजी से हो जाएगा. ब्रेकियल न्यूराइटिस में टीटी, दैट इज योर टीटी. टीटी. नेक्स्ट अबाउट मीजल्स में मैंने कैसे लिखा था? एस को मैं इस शेकिंग तरीके से लिख सकता हूँ, इट्स फेब्राइल सीजर्स. एनटीएस, toxic shock syndrome, toxic shock syndrome. And over here your paralysis obviously from OPV. GBS किससे हो जाएगा? किल्ड या इन्फ्लुएंजा. and interception rotaviral vaccine. So this is collection of this AEFI. समझ में आया आप लोगों को? टीटी अगेन, डॉक्टर साहब टीटी में देखो न्यूराइटिस की स्पेलिंग क्या होती है? दिस इज योर न्यूराइटिस, ब्रेकियल न्यूराइटिस. इस टी को मैंने डबल टी लिख दिया, दैट्स इट. सो दिस बिकम्स योर टीटी. न्यूराइटिस, द वर्ड itself saying न्यूराइटिस टाइस, तो टीटी, दैट्स इट. समझ में आया आप लोगों को? व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. या so this will become a little easier if we compare to. ठीक है. Next you have to remember about open mind policy. I know you already know about this कि open mind policy किस किस के which follow the T series वाले, but I just want you to please remember this hepatitis also, and this pentavalent is also T. अब pentavalent में HIV भी होता है, HIV. प्लीज रिमेंबर, आप pentavalent तो याद रख लोगे,
बट आप ये भूल जाओगे कि पेंटावेलेंट के अंदर HIV होता है. सो प्लीज रिमेम्बर इफ दे आस्क यू दिस HIV, अब वहां थोड़ी ना याद आएगा यार HIV में T तो नहीं होता, तो यू विल नेग्लेक्ट इट. बट प्लीज फोकस, दिस HIV इज अंडर पेंटावेलेंट एंड पेंटावेलेंट फॉलोज ओपन वाइल पॉलिसी. दिस प्लीज रिमेम्बर OPV एंड IPV में क्या T सीरीज है, ऑब्वियसली नहीं है, तो OPV और IPV भी आपको याद रखना है. अच्छा, PCV भी याद रखना है, ठीक है. ओपन वाइल पॉलिसी इज अप टू 4 weeks और 28 days. 28 days. Please everyone write in the chat section, apart from this T series, which vaccine will follow open vial policy? Apart from this T series, yeah, rotavirus also. BCG. Apart from this T series, which vaccines are following this open vial policy? जो you have, BCG. जो यहाँ पे मेंशनड है, जो यहाँ पे मेंशनड है ना, BCG डज नॉट फॉलो, जो यहाँ पे मेंशनड है ऑलरेडी, उसमें से बताओ ना. OPV, IPV, HIV and rota. This is what you have to remember. BCG does not follow measles, MR, MMR. Why? Because these are lyophilized vaccine. These are lyophilized vaccine. ठीक है, powdered form वगैरह में. So that's why they don't follow. ठीक है, this is what you have to remember. Next, I would like to discuss about this doses of this BCG, DPT, hepatitis B, measles. देखो, एक साथ इनको याद करेंगे. It will be very, 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 very easy to remember this. The thing, you have to follow the sequence. BCG, DPT, hepatitis B and measles. कैसे याद रखेंगे? देखो, डोजेस में आपको याद रखना है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ml. ठीक है, एक ही चीज याद रखेंगे, सब में 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. बट BCG में हमको याद रखना है इट्स नॉट 0.5, इट्स 0.05. ठीक है, एक चीज क्लियर हुआ अबाउट डोजिंग. हाँ, डोजिंग तो मेरा क्लियर हो गया कि सब में 0.5 है, सब में 0.5 है, बट BCG हमारा 0.05 है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, अबाउट डोजिंग, अबाउट रूटिंग, सॉरी, BCG को याद रखेंगे. BCD, ऑब्वियसली ABCD, D मीन्स इंट्राडर्मल. तो रूट हमारे BCG के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड. Yeah. So route for BCG will be intradermal. अच्छा, DPT and hepatitis B are written in the middle. M, intramuscular. For measles, if I look over here, या तो इसको आप MSC याद रख सकते हो, या फिर M, measles has at the end of S. तो that is your subcutaneous. ठीक है. एंड रिलेटेड टू दिस ऑब्वियसली इंटरडर्मल, D फॉर डेल्टॉइड. तो बस BCG में कुछ याद नहीं रखना है. BCG का BCD, D फॉर इंट्राडर्मल, डेल्टॉइड लेफ्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. और अगर आपसे डोज पूछे 0.05 ml. मिडिल DPT, हेपेटाइटिस बी एंटेरोलेटरल था, याद रखना. एंड रिलेटेड टू मीजल्स, राइट आर्म. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड दिस इज आवर BCG वैक्सीन. इफ यू सी ओवर हियर, डोज इज 0.05. ठीक है, एंड दिस इज योर जो हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस स्टेट, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, दिस कोल्ड चेन, PHC सब सेंटेंस. देखो, first of all, please remember, at state or regional level, you have this walk-in cold room and this walk-in freezer. Over here at district level, you have this larger Iceland refrigerator and larger deep freezer. At PHC, please remember SILR, that is small Iceland refrigerator and small deep freezer. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? They will ask you which among the following is the most important this component. Please remember SILR, क्योंकि मैक्सिमम वहां पे क्या होती है, स्टोर्ड होती है. PHC से आगे सप्लाई होता है सब सेंटर पे. ठीक है, सो ओवर हियर सब सेंटर पे हमको याद रखना है, वी हैव दिस वैक्सीन कैरियर. नेक्स्ट, also it also allows
to maintain this temperature from plus 8 degrees to plus 8 degrees Celsius. Very, very important. And then we have this session village. In the session village, you have to remember we have this ice packs that is from plus 2 degree to plus 8 degree Celsius. यहाँ पे भी ये जो कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट among this cold chain. Please remember ice pack are the smallest component. Next question they ask you, most common or we can say maximum cold chain failure will be at what? At sub center or session village. तो यहाँ से जो possible questions है I have told you. And maintain कितना होता है cold chain? ये these are the possible questions you have to remember over here. Next we have question related to this rabies vaccine. So rabies vaccine में we already know that we have this post exposure and pre exposure. Please remember post exposure, pre exposure. Also we will learn about rabies का immunoglobulin का dose. ठीक है. So if I talk about post exposure में हमको कैसे याद रखना है? We have this two regimen, that is SN regimen and this thigh updated Red Cross regimen. देखो SN regimen, please remember S can be remembered as muscles. IM, right? IM. This is what you have to remember. Okay. So S can be remembered as muscles, right? This is what you have to remember. तो ये कैसा लगेगा? इसका रूट क्या होगा? IM रूट होगा. ठीक है. This is what you have to remember. And the days which will be followed in this post exposure, very important. Post exposure का मतलब क्या होगा कि dog bite has took now and now you are coming to the hospital and you are asking for that vaccine. तो post exposure तो days में क्या हो जाएगा? Please everyone write in the chat section 0, 3, 7, 14 and 28. This is what you have to remember. ठीक है. This is what you have to remember. ठीक है. This is what you have to remember. 0, 3, 7, 14, 28. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू रिमेम्बर. तो यहाँ पे हम वन डोज देंगे. ठीक है. यूजुअली हम ये भूल जाते हैं कि थाई वाला इंट्राडर्मल था या फिर एसएन वाला. तो प्लीज रिमेम्बर दिस कैन बी रिमेम्बर्ड एज लाइक जस्ट टू रिमेम्बर, है ना. डोंट माइंड इट बट इट विल हेल्प अस टू रिमेम्बर दिस. ठीक है. थाई अपडेटेड रेड क्रॉस रेजिमेन, प्लीज रिमेम्बर दिस आईडी इंट्राडर्मल. तो इसमें हम कितने डोजेस देंगे? 2. यहाँ पे देयर विल बी नो डोजेस एट 14 डे but at 28 days there will be 2 doses. So obviously if you see over here this SN has S looks like 5. तो यहाँ पे total कितना डोज हो गया? At day 0, day 3, day 7, day 14 and day 28. Please remember 21 is not a day. High updated में कैसे याद रहेगा? High has 4 letters. So 4 letters like at 0, at 3, at 7 and at 28. Over here no 14, no 21. ठीक है. So this is what you have to follow. Very important. Dr. Sheikh Sadiq, I ignored your classes this many day, but really regret it. You are really very good at it, sir. Thank you, Sheikh. Thank you. No issue. Most of guys were ignoring, but जिन्होंने ignore नहीं किया, जिन्होंने मतलब if they been like 2 months, I think उनको काफी benefit हुआ होगा. That's what I got as a feedback. ठीक है. ठीक है. So this is what you have to remember. ठीक है. Now let's related to this pre-exposure. देखो pre-exposure में हमको क्या याद रखना है? IM pre-exposure हम किस में देंगे? आप बताओ. pre-exposure में हम किस में देंगे? कोई भी like care handlers या फिर वेटनरी डॉक्टर्स. ठीक है. तो जो भी डॉग हैंडलर्स होंगे उनमें ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है, तो उसमें we will give pre-exposure. तो pre-exposure prophylaxis. So over here day 0, day 3 या तो day 21 को या फिर day 28. ठीक है. तो टोटल 3 डोजेस. ठीक है. नाउ पोस्ट एक्सपोजर इन वैक्सीनेटेड, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, अब उनको डॉग बाइट हो गया. लेट्स से कि एक वेटनरी डॉक्टर है, ऑलरेडी ही और शी हैज टेकन दैट वैक्सीन, पहले से ही वैक्सीनेटेड है, लेकिन अब डॉग बाइट हो गया. अब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इन दैट सिचुएशन आई विल गिव डोजेज ऑन द सेम डे जिस दिन वो हॉस्पिटल विजिट किया है, एंड ऑन द डे 3. सो इफ यू कैलकुलेट, अच्छा पहले 3 डोज आपका हो चुका था एंड नाउ 2 डोजेस, तो टोटल कितना डोज हो गया? तो पोस्ट एक्सपोजर इन वैक्सीनेटेड में कितना डोज लगेगा? प्लीज रिमेंबर दिस न्यूमेरिकल वैल्यू.
दिस 5 डोजेस, 5 डोजेस। समझ में आया आप लोगों को कि हाउ 5? क्योंकि 3 तो पहले रिसीव हो गया था और 2 अब रिसीव किया व्हेन दिस एक्सपोज टू देयर डॉग बाइट। समझ में आया? प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Okay, got it, got it. Very good, very good. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू रिमेम्बर अबाउट वुंड मैनेजमेंट। वुंड मैनेजमेंट, अच्छा वुंड मैनेजमेंट में कैसे करूंगा? वी विल वॉश इट विथ सोप प्लस रनिंग वाटर फॉर 15 to 20 minutes. Please remember, it should be running water. It should be running water for 15 to 20 minutes. And also there should be no suture. Suture तो नहीं लगाना है, suture तो लगाना ही नहीं है, ठीक है? And we will give this amoxiclav combination, amoxiclav combination. And about rabies का IgG, rabies का immunoglobulins, please remember we have two types of immunoglobulins, that is human वाला and equina. Equina means please respond, means horse, right? Horse. Please remember, over here H is not horse, H is human. ठीक है? ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओवर हियर H is not horse, H is human, and this equina means horse. ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, because they can ask you, and this is the correct way. पिछली वाली पीडीएफ में H कैपिटल था, बट द करेक्ट वे इज HRIG. Please remember, this is human, H for human, not for horse. This is your 20 international unit per kg, and ERIG का कितना होगा? 40 international unit per kg, and 100% around the wound. देखो, प्लीज रिमेंबर 100% इन एंड अराउंड द वुंड, इन एंड अराउंड द वुंड, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है? जितना भी डोजेस हमने कैलकुलेट किया है, दैट शुड बी इन एंड अराउंड द वुंड, दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? दिस इज व्हाट यू टू रिमेंबर। नेक्स्ट we will talk about this mission Indradhanush. About mission Indradhanush, please remember that we have this 100% immunization completed by 2020. This was their all. Over here target beneficiaries, they will ask you very important कि मिशन इंद्रधनुष में टारगेट बेनिफिशियरीज क्या थे, ठीक है? 0 to 2 years of age प्लस प्रेग्नेंट फीमेल। ये मेरा क्लियर हुआ? प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। सर अगेन प्लीज, आई हर्ड दिस, इट्स टाइम होस्ट। ओके, एवरीवन मिस्ड, ठीक है? देखो प्लीज याद रखना, H इज नॉट फॉर हॉर्स, H फॉर ह्यूमन, ठीक है? वाई? बिकॉज इक्वाइना मीन्स हॉर्स होता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओवर हियर H इज नॉट हॉर्स, H इज फॉर ह्यूमन, इक्वाइना इज फॉर हॉर्स, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, पहले 7 वैक्सीन आई थी, दैट्स व्हाई इंद्रधनुष, BCG, DPT, OPV, hepatitis B, measles. Then we have added 4 more vaccines to this. This is your Japanese encephalitis, IPV, RBV, rotaviral vaccine, MR vaccine. And then we have added this HIB and PCV. PCV. This is what you have to remember. This is your mission in the Dhanush. Very important. So total, if you calculate, 7 plus 4 plus 2 becomes your 13 vaccines. तो कहानी स्टार्ट हुई थी 7 वैक्सीन से, अब कहानी कहाँ पे है? थोड़ी 13 वैक्सीन। अगर आपसे टारगेट बेनिफिशियरीज पूछे तो प्लीज रिमेंबर 0 to 2 years of age and pregnant female, ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू remember. And over here let's discuss about this vaccine while monitor. देखो, I know you already know a lot of things about this vaccine while monitor, but क्वेश्चन में वो जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। First of all, you have to remember, first question they can ask you, it is a marker of cold chain maintenance. Please everyone write in the chat section this VV. It will take your 15 seconds, but believe me, you will remember it. Vaccine while monitor is a marker of cold chain maintenance. Cold chain maintenance, very important to remember. Very important to remember. This is your grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. अच्छा, grade 1 यहाँ पे हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं बिकॉज कोल्ड चेन मेंटेन हुआ है। ओवर हियर ऑल्सो, जब लाइट ब्लू अंदर का जो सर्कल, अंदर का जो स्क्वायर है वो लाइट ब्लू है,
तो ऑब्वियसली वी कैन ओवर यूज, बट अंदर का जो सर्कल है इट बिकम्स ब्लू और इवन डार्कर देन दिस आउटर सर्कल, अंदर का जो हमारा स्क्वायर है, देन इन दिस ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 यू शुड अवॉइड इट। ठीक है, नेक्स्ट you have to remember about efficacy. Very important about efficacy. Please remember efficacy for one dose. Efficacy for one dose for BCG, for measles and for rubella. देखो, अगर आपसे पूछा जाए बीसीजी का इफिकेसी कहाँ से है, प्लीज रिमेंबर इट्स फ्रॉम 0 to 80%, 0 to 80%. If they ask you a median value, please remember 50%, 50%. अब आप सोचोगे, इफ यू रिमेंबर, अच्छा बीसीजी एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन का इफिकेसी जीरो कैसे हो सकता है, एक वैक्सीन का इफिकेसी जीरो कैसे हो सकता है कैसे, बीसीजी इज फॉर टीबी, वी नो बीसीजी इज फॉर टीबी, लेकिन कौन सा टीबी, वी दैट इज ऑल्सो वी नो कि हाँ एक पल्मोनरी टीबी होता है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, दिस बीसीजी इज नॉट फॉर पल्मोनरी टीबी, this BCG is actually against for this extra pulmonary TB. This is not for pulmonary TB, it is for extra pulmonary TB, and this extra pulmonary TB are the severe form of TB, like for example spinal का TB, menin का टीबी, बोन का टीबी, या फिर जेनेटिक यूरिनरी टीबी, सो दीज आर ऑल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल कम्स अंडर योर बीसीजी, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो अगर पल्मोनरी टीबी के लिए इफिकेसी पूछे तो प्लीज रिमेंबर इट्स 0%, 0%, एंड 80% is ranges from 80%. If they ask you for median value, it's 50%, 50%. Next, if they ask, so please focus over here, it is for just one dose, one dose. Then if I ask you for measles, measles में efficacy first dose की 90%, 90%, ठीक है, this is what you have to remember. And for rubella first dose का efficacy कितना होगा, 95%. अब आप लोग देख के बताओ हाईएस्ट एफिकेसी इन वन डोज किसका होगा, इफ आई कंपेयर टू बीसीजी, मीजल्स और रूबेला में से हाईएस्ट किसका होगा विद वन डोज, वेरी गुड शीतल, गुड, सो इट विल बी ऑफ रूबेला 95%। एक क्वेश्चन तो ये हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन वो हमसे पूछेंगे, इफ आई एम गिविंग सेकेंड डोज, इफ आई एम गिविंग सेकेंड डोज, तो इफिकेसी नियरली टू 100% और 99% किसका होगा, दैट इज मीजल्स। तो फर्स्ट डोज में 90% इफिकेसी हो जाता है, लेकिन अगर मैं सेकेंड डोज देता हूँ ऑफ मीजल्स इट बिकम्स 99%, सो दिस ऑल्सो बिकम्स माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इफिकेसी समझ में आया सबको, समझ में आया इफिकेसी का परसेंटेज कैसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, आई होप यू गाइस रियली लाइक इट दिस सेशन, so yeah, I would like to end this session over here, and जो भी further topics है we'll try to revise in further upcoming sessions। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को, Yes, sir, it was wonderful. Yes. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, देखो दिस इज वेरी हाई यील्डिंग टाइम, ये जो आपका जो ये पीरियड है ना, लाइक 30 डेज ऑलमोस्ट 30 डेज, ठीक है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फ्रॉम बूस्टर सीड्स, फ्रॉम समर्पित बेस्ट, जो हमसे बेस्ट हो सकता है फॉर यू टू हेल्प इन दिस पर्टिकुलर टाइम। we are actually performing our responsibility with all honesty, it's all depends on you। देखो आप एग्जाम देने जाओगे, you have to be trustworthy and honest with yourself, you have to be trustworthy and honest with yourself। अगर बिलीव मी, अगर आप ऑनेस्ट रहे हो आपकी प्रिपरेशन के साथ, विथ फुल ऑनेस्टी, विथ फुल कंसिस्टेंसी, आई बेट यू, आई अश्योर यू कि मतलब ये दिस एग्जाम कैन नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, बिलीव मी इट विल बी एंड डूएबल एग्जाम। आई वुड नॉट से कि बहुत इजी एग्जाम हो जाएगा, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट जस्ट अ कप केक कि हाँ इजी एग्जाम, नॉट एट ऑल, दिस इज अ वेरी आई वुड से कि मतलब थोड़ा सा हाइब्रिड एग्जाम, हाइब्रिड इन द सेंस कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे ऊपर चला जाता है, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट वी हैव टू सरपास दैट विद इजी क्वेश्चन। जो इजी क्वेश्चन आता है उनको हमको गलत नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस को हमको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। इफ यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल like revise the easy things better way,
और माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करो। बिलीव मी गाइस, एग्जाम में वो आपको कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स ला ला के नहीं पूछेंगे, वो सेम टॉपिक को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके वो माइन्यूट डिटेल्स पूछेंगे। इफ यू आर रिपीटर और इफ इट्स नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन बिलीव मी, आप हमेशा एग्जाम देके आते हो, आप एक ही चीज हमेशा अपने आप को बोलते होंगे, यार एग्जाम को देख के ऐसा तो लग रहा था कि हाँ चीजें आती है बट मैं रिवाइज नहीं कर पाया या रिवाइज नहीं कर पाई। ये 100% आपके दिमाग में आता है, राइट? दिस टाइम ये कहानी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है विद योर प्रिपरेशन, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है? And whomsoever have to revise this lecture again, I'll upload this on YouTube as a LMRs, this LMT sessions. This is last minute research sessions, so you can revise that from that thing also. Okay? क्या? Yes sir, thank you, this is really a good class sir, please give PDF booster series। सर पीडीएफ मिलेगी क्या एग्जाम से एक दिन पहले रीड के लिए? सर अब एक मंथ में कम से कम 10 to 12 से जो हो सकते हैं, अगर अच्छे से करने जाए तो ऑब्वियसली। यस नयन, आपको अब यही फोकस करना है। देखो, आपको अब यही फोकस करना है कि इन दिस 30 days ऑफ टाइम पीरियड यू हैव टू जस्ट मास्टर योर 10 to 12 सब्जेक्ट्स। मास्टर का मतलब ये होता है कि जो मेरे स्ट्रांग है उसको स्ट्रॉन्गर बना के जाना है। ऐसा नहीं है कि बस उन 10 to 12 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते रहना है, बाकी छोड़ना है, नहीं। यू हैव टू बी विद एवरी सब्जेक्ट। बट यस, आई माई प्रायोरिटी अपने, अगर आपने जीटीज दी हैं, जस्ट ओपन योर जीटी का वो जब जिसमें लाइक पूरे 5-6 कंबाइन का जो आपका आता है ना, यू हैव टू ओपन दैट एंड वहां पे आपको देखना है कि यार मैं स्ट्रॉन्ग कौन सा रहा है, स्ट्रॉन्ग मेरा कौन सा रहा है। ठीक है? इस तरीके से अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए हुए और ओवरऑल मेरा ये बेटर है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बना के जाना। दिस इज नॉट अ टाइम कि जो मेरा छूट गया है वो पढ़ लेती हूँ, नो 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 नो, वो टाइम चला गया। नाउ आई वुड नॉट एडवाइज यू टू रीड एनीथिंग न्यू, वो टाइम चला गया। दिस इज माई टाइम टू रिवाइज दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाना है। ठीक है? या डेली यू हैव टू सिक्योर 5 marks इजिली। और बिलीव मी, ये सेशंस आप फॉलो करोगे एटलीस्ट फॉर वट एवर सब्जेक्ट। और मान लेट्स से कि अगर टॉपिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट 150 टॉपिक्स जो एग्जाम से पहले आपको करके जाना, अगर हम वो भी करवाएंगे, वो भी अगर आप करके चले जाओगे, देयर विल बी सो मच हाई प्रोबेबिलिटी के यू विल क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है? सो टेक केयर, वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क और यू कैन डिस्कस इट डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो। ठीक है? एंड हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल। थैंक यू एवरीवन। या